Hello students. So students, as you know that we are completing chapter number 11, conic sections, okay? Student, in the last part we have started hyperbola, okay? And I told you that hyperbola is the set of all the points in a plane whose the ratio of the distances from a fixed point and from a fixed line is constant, which is known as the eccentricity of the conic. And in the case of hyperbola, it is greater than 1, okay? And one more definition I told you about hyperbola is that the set of all the points in a plane, sum of whose distances from two fixed point is constant, okay? Means whenever you will take a point on the hyperbola and you will calculate its distances from two fixed point, and after calculating the distances you will subtract them, so that subtraction will be constant throughout the conic, okay? So in the last part, student, I have also told you the standard equation of hyperbola, that was x square by a square minus y square by b square is equal to 1. Okay. So today we will study about the conjugate hyperbola. In the last hyperbola, it means the simple hyperbola, we have studied all things, means its equation, its the coordinate of its focus, the coordinate of its vertices, the equation of its directrix, and so on, the length of latus rectum and the value of the eccentricity. Okay. So today also we will discuss about the conjugate hyperbola. So student, first we should start from the definition of conjugate hyperbola. Student, in the earlier case we have drawn the hyperbola is like this. We have drawn the hyperbola like this. Okay. This was our actual hyperbola, in which the x-axis is known as transverse axis and the y-axis is known as conjugate axis. Okay. And there were two directors like that. Okay. Here was focus, that was S1 and S2. Okay. X-axis is known as transverse axis and y-axis is known as conjugate axis. Okay. And the equation of the hyperbola was x square by a square minus y square by b square equal to 1. ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. So what is the definition of conjugate hyperbola? So conjugate hyperbola is that hyperbola in which the transverse and conjugate axis are the conjugate and transverse axis of the given hyperbola. Means it is the actual hyperbola, means it is our normal hyperbola. And whenever you have to define the conjugate hyperbola, so in the case of conjugate hyperbola, the transverse axis of the hyperbola becomes conjugate axis and the conjugate axis of the hyperbola becomes transverse axis. So that type of parabola is known as conjugate hyperbola. मतलब कि इस नॉर्मल वाले हाइपरबोला में हमारी एक्स एक्सिस होती थी क्या, ट्रांसवर्स, एंड वाई एक्सिस होती थी हमारी कॉन्जुगेट. तो जब हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला पढ़ेंगे इस पैराबोला का, हाइपरबोला का, तो क्या होगा, इसका जो कॉन्जुगेट है वो इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस का, सॉरी, इस वाले हाइपरबोला का जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का वो ट्रांसवर्स बन जाएगा, और इस वाले का जो ट्रांसवर्स है उस वाले का क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि एक्सिस आर इंटरचेंजिंग टू ईच अदर इन केस ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला. अगर आपको कोई पैराबोला हाइपरबोला दिया हुआ दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड समबडी आस्क यू व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ दिस हाइपरबोला, मतलब कि किसी हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, तो उसके केस में क्या होते हैं, ट्रांसफर और कॉन्जुगेट एक्सिस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं. तो अगर आपको इस तरह समझ में ना आया हो तो ये जो रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब मैं कॉन्जुगेट ड्रॉ करूंगा सो इट विल बी लाइक दैट. ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा और ये कुछ ऐसा होगा. ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ दिस हाइपरबोला. This is the conjugate hyperbola of this hyperbola, and I told you whenever a hyperbola cuts its axis, that is known as the vertex. So suppose this point is B1 and this point is B2. ठीक है, so the coordinate of B1 is 0, B and this is coordinate is 0, minus B. ठीक है, इस केस में ये जो हमारा पहले वाले केस में ये कॉन्जुगेट होता था, इस वाले केस में ये क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्स. ठीक है, ये बन जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस. ठीक है, और जो हमारा पहले वाले केस में ट्रांसवर्स होता था वो इस केस में क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट. यही डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश. ठीक है,
तो आप खुद देख रहे होगे, ये पहला वाला पैराबोला मैंने ड्रॉ किया था, ये दूसरा वाला पैराबोला है। यहां पे डायरेक्ट्रिक्स कुछ ऐसा होता है, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो गया ये, इसको मैं पहले मिटा देता हूं, नीचे लिख दूंगा मैं। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स नंबर 1 एंड दिस इज डायरेक्ट्रिक्स नंबर 2, दिस इज आर ओरिजिन, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एंड इन केस ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला, this is y axis is known as transverse axis and x axis is known as conjugate axis, but in the normal hyperbola x axis is known as transverse axis and y axis is known as conjugate axis। तो ये इंटरचेंज हो जाता है जब भी हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करते हैं। जब नॉर्मल हाइपरबोला बोलोगे आप तो उसमें जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है और कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग। लेकिन कॉन्जुगेट हाइपरबोला में जो एक्स एक्सिस होती है वो कॉन्जुगेट एक्सिस होती है और जो वाई एक्सिस होती है वो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। तो यहां पर हमारी जो एक्स एक्सिस हुई दैट इज कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। बाकी सारी चीजें लगभग सेम होती है। अब अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इन दिस केस, व्हाट इज एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इन दिस केस, तो आप कहोगे बिकॉज हाइपरबोला कट्स द वाई एक्सिस, सो इस हाइपरबोला की जो एक्सिस है वो क्या होगी, वाई एक्सिस के अलोंग। वैसे तो ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इन केस ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इस केस में जो उसका इक्वेशन निकलेगा वो x इक्वल टू 0 निकलेगा, और यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस एक्स एक्सिस है तो इसका y इक्वल टू 0 निकलेगा, ठीक है। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन थी, मतलब कि अगर आपको कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिखना हो किसी हाइपरबोला का, तो हमारा नॉर्मल हाइपरबोला ये होता है। नॉर्मल हाइपरबोला में हमारे ट्रांसवर्स एक्सिस x के अलॉन्ग होती है और कॉन्जुगेट एक्सिस y के अलॉन्ग होती है। तो उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या होगा कि x एक्सिस बन जाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस और y एक्सिस बन जाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस। और कोई भी हाइपरबोला अपने ट्रांसवर्स एक्सिस को ही कट करता है, जिसको उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो यहाँ पे b1 और b2 हमारे क्या हुए, वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला, जिसके कोऑर्डिनेट है 0, -b। ये हमारा ओरिजिन है O, दिस इज x डैश एंड y डैश इज आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहां कहीं पे हमारा फोकस होगा, सपोज दिस इज S1 एंड दिस इज S2, एंड जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं स्टूडेंट वो होता है 0, BE, और ये जो होता है वो 0, -p। अगर आप इसको इलिप्स से भी रिलेट करोगे तो काफी कुछ सिमिलर है, ठीक है। इसका जो इक्वेशन होता है स्टूडेंट पहले वाले डायरेक्ट्रिक्स का, वो होता है y इक्वल टू b/e, और जो इस वाले का इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू -b/e, ठीक है। और यहां पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, यहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, तो इस केस में जो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाती है उसकी लेंथ होती है 2b, और कॉन्जुगेट एक्सिस क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो वो हो जाती है 2a, ठीक है। तो अगर मैं डिफाइन करूं कि क्या इक्वेशन होगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला का, तो द इक्वेशन ऑफ, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, द कॉन्जुगेट हाइपरबोला, the conjugate hyperbola of the hyperbola। किसी हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, ऑफ द हाइपरबोला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 इज क्या होता है, -x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू -1। सो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला का क्या होता है, इक्वेशन। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्यों इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इसके जो वर्टेक्स, इसका जो ये पॉइंट होता है वो ओरिजिन पे होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये किसका, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। तो मतलब यहां ये स्टूडेंट
कि अगर कोई हाइपरबोला है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। याद करने का तरीका कि इसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका y में ओरिजिनल वाले हाइपरबोला के इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो जो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x का नेगेटिव हो जाएगा और y का पॉजिटिव हो जाएगा, और इसी को अगर माइनस कॉमन ले करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही इक्वेशन है, चाहे आप इसको इस तरह लिखो चाहे आप इसको इस तरह लिखो। ठीक है, हमारा जो ओरिजिनल हाइपरबोला होता है उसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है वो अलोंग एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, और उसकी जो कॉन्जुगेट एक्सिस होती है वो अलोंग वाई एक्सिस होती है, लेकिन जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग होगी और उसकी जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। और इस केस में कॉन्जुगेट हाइपरबोला में जो हाइपरबोला होता है वो वाई एक्सिस को कट करता है और ओरिजिनल हाइपरबोला में जो हाइपरबोला होता है वो एक्स एक्सिस को कट करता है। तभी हमारा जो ग्राफ बनता था वो कुछ, जो हमारा नॉर्मल वाला बनता था वो कुछ ऐसा बनता था। ये जो हाइपरबोला है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और इसका जो कॉन्जुगेट है वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो आपको ऐसे याद रखना है, बाकी सारी चीजें सेम है। सो अगर कोई हाइपरबोला आपको गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, इक्वेशन होता है। ठीक है, तो इसके भी कुछ टर्म्स हम लोग लिख लेते हैं, इसके भी कुछ हम लोग टर्म्स लिख लेते हैं स्टूडेंट, क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, देन दिस चैप्टर विल बी फिनिश। 1-2 क्वेश्चन आई कैन टेल यू सो दैट यू कैन सॉल्व द होल एक्सरसाइज। अब देखो ध्यान से, ये हाइपरबोला y एक्सिस पे कट कर रहा है, इसका मतलब b1 और b2 इससे क्या होंगे, वर्टेक्स। सो अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो उसके वर्टेक्स y एक्सिस पे लाई करते हैं, और अगर सिंपल हाइपरबोला है तो उसके वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। ठीक है, सो दिस थिंग यू शुड नो। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मैं क्या क्या लिख रहा हूं इसमें, देखिए आप ध्यान से कि व्हाट आई एम गोइंग टू राइट। सो फर्स्ट आई विल राइट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, यहां पे कुछ चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो किसी भी कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, और करके, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ conjugate hyperbola. Now we have to discuss few things of this parabola, hyperbola. ठीक है, इस हाइपरबोला का जो सेंटर होता है वो कहां पर होता है, ओरिजिन पर। तो फर्स्ट वी विल राइट इट्स सेंटर। सो द सेंटर विल बी 0,0। ठीक है, सेंटर क्या होता है, 0,0। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है स्टूडेंट, वर्टिसेस। वर्टिसेस कहां पे होते हैं इसमें, इसके वर्टिसेस कहां पर है, b1 और b2 को, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होगा 0, प्लस माइनस b। ठीक है, ये होगा। ठीक है, थर्ड फोसाई, मतलब कि फोकस। 2 फोकस इसमें भी होते हैं इलिप्स की तरह। तो फोकस, क्योंकि जो जिस एक्सिस पे हाइपरबोला कट करता है उसी एक्सिस पे उसका फोकस भी होता है, तो S1 और S2 y एक्सिस पे होंगे, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होने चाहिए वो होंगे 0, प्लस माइनस BE। वहां पे AE, 0 था, यहां पे 0, BE है। ठीक है, तीसरा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्स, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कैसे निकालते हैं, b1 से लेकर b2 तक। ठीक है, b2 ये है और b1 ये है, तो b1 b2 होना चाहिए, जिसकी लेंथ होती है 2b।
इस केस में जो लेंथ होती है ट्रांसवर्स एक्सिस की वो होती है 2b, उस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी आई थी 2a, इसके पहले जो हमने किया था। फिफ्थ, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो इस केस में कॉन्जुगेट एक्सिस एक्स एक्सिस पे आएगा, तो उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 2a, 2a, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसमें भी दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, देखो डायरेक्ट्रिक्स एक y इक्वल टू बी अपॉन ई है और दूसरा है y इक्वल टू माइनस बी बाई ई, तो ये टुगेदर इसको लिखा जाए तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई, ठीक है। उसके बाद इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी दैट इज ई, इसेंट्रिसिटी जो होता है इसमें स्टूडेंट, इसेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, 1 प्लस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इन दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1 प्लस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है, पहले वाले सिंपल हाइपरबोला के लिए भी और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए। बस यहाँ चेंज क्या होगा कि यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है 2a और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होती है 2b, तो 2a और 2b पुट करोगे तो जो e की इफेक्टिव वैल्यू आएगी स्टूडेंट, स्पेस तो नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, e की जो इफेक्टिव वैल्यू आएगी e की, दैट इज इसेंट्रिसिटी, दैट विल बी a1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। देख लो कॉन्जुगेट 2a है, ट्रांसवर्स 2b है, 2 कट जाएगा तो 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, और यहां पे क्या होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसके पहले वाले हाइपरबोला में यहां पे बी स्क्वायर था और यहां पे ए स्क्वायर था, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ए स्क्वायर है, यहां पे बी स्क्वायर है, ठीक है। तो चाहे इस तरह याद कर लो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, चाहे इस तरह, ठीक है। कुछ और चीजें हैं मैं लिख देता हूं, तो ये कितनी चीजें हुई, 7 चीजें हुई, ठीक है। और भी कुछ लिख देता हूं मैं, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, आई होप आपने पॉज करके नोट डाउन कर लिया हो, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं ताकि जो बची हुई चीजें हैं वो हम लिख पाए। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ओके, दैट इज आई थिंक इट इज द 7th पार्ट, 7th नहीं जो भी पार्ट हो, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, so length of latus rectum is in this case ओरिजिनल हाइपरबोला में 2b स्क्वायर बाई ए होता है, यहां पे क्या होता है 2a स्क्वायर बाई बी, ठीक है, 2a स्क्वायर बाई बी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये भी आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वो तो आप देख के ही बता सकते हो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इन दिस केस द ट्रांसवर्स एक्सिस इज y एक्सिस, so its equation will be x equal to 0, ठीक है। now next thing, equation of conjugate axis, equation of conjugate axis, so equation of conjugate axis is y equal to 0, क्योंकि conjugate axis x axis है तो उसका इक्वेशन y equal to 0, ठीक है। उसके बाद फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस होता है b प्लस माइनस ई वाई, ओके, b प्लस माइनस, या ऐसे लिख सकते हैं ई वाई प्लस माइनस बी,
दो फोकल डिस्टेंस होता है, आपको भी पता है, एक प्लस वाले होता है, एक माइनस वाला होता है। जो प्लस वाला होता है वो दूर के फोकस से डिस्टेंस होता है, और जो माइनस वाला होता है वो नजदीक के फोकस से डिस्टेंस होता है। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट एक और पॉइंट लिख लीजिए कि इस केस में जो मॉड ऑफ PS1 माइनस PS2 आता है वो आता है किसके बराबर, 2b के बराबर आता है, वो ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर आता है। ठीक है, उस केस में 2a के बराबर आया था, आपने देखा होगा कि जब मैंने किसी पॉइंट की फोकल डिस्टेंस निकाल के उनका सब्ट्रैक्शन किया था तो वो 2a के बराबर आया था। इस केस में 2b के बराबर आता है, मतलब कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है उसी के बराबर आता है। अगर वो सिंपल हाइपरबोला है तो उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे होती है, तो उनके किसी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है वो 2a के बराबर होता है। और अगर किसी हाइपरबोला का जो कि एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, अगर उसका ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस पर है तो उस पर किसी पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस आता है वो उसके 2b के बराबर होता है। ठीक है, वहां पे ट्रांसवर्स लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी थी, 2a पहले वाले हाइपरबोला में, तो फोकल से डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस आया था वो 2a के बराबर आया था। यहां से क्या आएगा, 2b के बराबर आएगा। यही डिफिनेशन भी होती है हाइपरबोला की। दिस इज ऑल्सो नोन एज द सेकंड डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। सो इतनी सारी चीजें हैं, हमको याद रखनी है, सारी चीजों को 10-12 चीजें होंगी। तो ये हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। कैसे आपको याद रखना है, सिंपल हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे होती है और कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस पे होती है। उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या होगा कि ट्रांसवर्स वाई पे होगा और कॉन्जुगेट एक्स पे होगा, इंटरचेंज हो जाता है बस। ठीक है, हाइपरबोला जिस एक्सिस पर कट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला। इस केस में हाइपरबोला वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो जो वर्टेक्स आ रहा है वो वाई एक्सिस पे आ रहा है, इसीलिए जो कोऑर्डिनेट आए हैं 0,b और 0,-b। इस केस में वाई एक्सिस हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस होती है और एक्स एक्सिस हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। इस केस में लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2b एंड लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2a। इस केस में जो इसेंट्रिसिटी होती है दैट इज इक्वल टू √1 + a²/b²। इस केस में जो फोकल लेंथ होता है दैट इज e/±b और लैटिस रेक्टम 2a²/b। फोकस दोनों ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई करते हैं, चाहे वो सिंपल हाइपरबोला हो चाहे वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो। ठीक है, और इसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई हाइपरबोला क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर कोई सिंपल हाइपरबोला क्या है, x² / a² - y² / b² = 1, ये सिंपल हाइपरबोला है, तो इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का क्या इक्वेशन होगा, तो बस आपको इन दोनों के साइन को इंटरचेंज कर देना है। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसका क्या हो जाएगा, -x² / a² + y² / b² = 1। ठीक है, ये सिंपल हाइपरबोला है और ये इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो हमारा सारा डिस्कशन हो गया इस चीज पे। सो लेट्स डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस देन रैप अप दिस चैप्टर। ओके, वेरी सिंपल एक्सरसाइज इज देयर। ऑल क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन ओनली ऑन व्हाट, ओनली ऑन formulas. So if you want to solve this exercise, so you have to remember all the formula which is required to solve all of the questions. So let's discuss few questions, then this chapter will be over. Okay. Now, exercise 11.4. Exercise 11.4 of your NCERT. Now see again in exercise 11.4. Exercise 11.4. From question number 1 to question number 6, what you have to calculate? Find the coordinates of foci and vertices, the eccentricity and the length of the lattice rectum of the hyperbola. ठीक है, तो क्या क्या हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, हमें क्या क्या फाइंड करना है, लिख लेते हैं पहले। वी हैव टू फाइंड द फोसाई, वी हैव टू फाइंड द वर्टिसेस, वी हैव टू फाइंड द इसेंट्रिसिटी and lattice rectum LR. That's it. These much things we have to find out. ठीक है, from question number 1 to question number 6. So question number 1 is that x² upon 16 minus
वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर आप ये हाइपरबोला देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, सो दिस हाइपरबोला इज द नॉर्मल हाइपरबोला। ठीक है, दिस इज आर नॉर्मल हाइपरबोला। ठीक है, नाउ अगर ये नॉर्मल हाइपरबोला है स्टूडेंट, इट मीन्स, क्योंकि देखो ये सिंपल हाइपरबोला की तरह लग रहा है, तो अगर मैं इसको किससे कंपेयर कर दूं, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सो वी कैन से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो ए विल बी 4 एंड बी विल बी 3। ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ए और बी हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं क्योंकि ये डिस्टेंसेस होती है। नाउ वी हैव टू फाइंड द फोकस। अब देखो ये नॉर्मल हाइपरबोला है, इसका मतलब जो हाइपरबोला हमारा होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट हमारा ए होता है, A1 होता है, ये वाला पॉइंट हमारा A2 होता है, और ये डिस्टेंस ए होती है और ये डिस्टेंस भी ए होती है। ठीक है, तो हमारा जो इस केस में जो फोकस होता है स्टूडेंट S1 और S2, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इस केस में, तो फोकस जो होता है, फोसाई जो होता है हमारा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस AE, 0 ये होता है। ठीक है, लेकिन उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा। सो लेट्स डिस्कस इसेंट्रिसिटी। सो इसेंट्रिसिटी क्या निकालने के लिए क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग? इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हम लोग निकालते हैं। तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर हमको पता ही है, तो बी स्क्वायर हमारा 9 है, ये हम 9, दिस इज 16, इट इज ई स्क्वायर माइनस 1, या ई की वैल्यू आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस नॉर्मल हाइपरबोला में ई की वैल्यू ये होती है और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में ई की वैल्यू ये होती है, जो मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, या आप ऐसे भी ऐसे कर सकते हो, अंडर रूट में 1 प्लस कॉन्जुगेट लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट अपॉन लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर। ठीक है, तो यही आएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या आएगा, 9/16 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 9/16, सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16, ये 9 है। ठीक है, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, सो ई की वैल्यू अंडर रूट में 25/16 विच इज इक्वल टू 5/4। सो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिल गई, दैट इज 5/4। और आपको भी पता है कि द हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा 1 से ज्यादा होती है, तो ये 1 से ज्यादा ही है। ठीक है, तो नाउ लेट्स सॉल्व फोकस। इसेंट्रिसिटी हमने निकाल लिया, तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई? कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई विल बी प्लस माइनस AE, 0। नाउ प्लस माइनस ए की वैल्यू हमें पता ही है 4 और ई की वैल्यू 5, 0। ठीक है, तो क्या आ गया, 4 से 4 कट गया, तो प्लस माइनस 5, 0। तो जो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे स्टूडेंट्स वो होंगे प्लस माइनस 5, 0। ठीक है, क्योंकि दो फोकस होता है ना, एक बार जब प्लस वाली वैल्यू लोगे तो प्लस 5, 0 आएगा और एक दूसरा आएगा माइनस 5, 0। तो जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस AE, 0, वैल्यू पुट किया तो फोकस हमारा आ गया प्लस माइनस 5, 0। ठीक है, वर्टिसेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टिसेस? ठीक है, सो फर्स्ट यू राइट दीज थिंग्स, देन वी विल डिस्कस व्हाट इज वर्टिसेस। अच्छा देखो स्टूडेंट, वर्टिसेस फाइंड करना है अगर हम लोगों को, सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना है इसमें, वर्टिसेस। हमने इसेंट्रिसिटी निकाल लिया, हमने फोसाई निकाल लिया, अब वर्टिसेस फाइंड करना है। वर्टिसेस क्या होती है स्टूडेंट? नॉर्मल हाइपरबोला में जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस A, 0। कॉन्जुगेट में 0, प्लस माइनस B होता था। ठीक है, तो वर्टिसेस A की वैल्यू पता ही है हम लोग को 4, सो वर्टिसेस विल बी प्लस माइनस 4, 0। ठीक है, सो आई थिंक सब कुछ निकाल लिया, बस एक LR बचा हुआ है, दैट इज लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम क्या होता है इस केस में नॉर्मल हाइपरबोला में, दैट इज 2B स्क्वायर बाई A। ठीक है, तो B स्क्वायर बताइए आपको, 2 इंटू 9 डिवाइड बाई A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 4, सो इट विल कम 9/2। सो ऑल द थिंग्स वी हैव कैलकुलेटेड स्टूडेंट। ठीक है, सारी चीज मिल गई, हम लोग का इसेंट्रिसिटी मिल गया, हम लोग का फोकस मिल गया, वर्टिसेस मिल गया, लैटस रेक्टम मिल गया। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। पहले आपको एनालाइज करने आना चाहिए कि विच हाइपरबोला इट इज द नॉर्मल हाइपरबोला
और इट इज द कॉन्जुगेट हाइपरबोला. ठीक है. When you will recognize these things, then you can easily solve this type of questions. Okay. So I hope question number first is clear to you. Now let's discuss question number second. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर सेकंड. ओके. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 6 ना ऑल क्वेश्चन आर सेम. ठीक है. सो नो नीड टू वरी. जस्ट रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलेज एंड अप्लाई इट. ओके. आपको बस याद रखना है कि नॉर्मल हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, वाई स्क्वायर नेगेटिव होता है, और कॉन्जुगेट में वाई स्क्वायर पॉजिटिव होता है और एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है. ठीक है. नाउ सी इट. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इक्वल टू 1. ठीक है. इक्वल टू 1. ठीक है. इट इज 9. नाउ स्टूडेंट्स देखो जरा ध्यान से. अगर मैं इस हाइपरबोला का देख रहा हूं तो जो नॉर्मल हाइपरबोला होता है हमारा वो कुछ इस टाइप का होता है. दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये दो हाइपरबोला का इक्वेशन होता है, एक सिंपल वाला और एक उसका कॉन्जुगेट का हाइपरबोला का. ठीक है. तो ये तो सिंपल वाला नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव है. तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कैसे, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना. तो इसका मतलब ये एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला है. सो वी विल राइट दिस इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला. दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला. कॉन्जुगेट हाइपरबोला. ठीक है. तो अगर ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला तो किसको कंपेयर करेंगे? लेट कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अगर आप कंपेयर करते हो इसको, सो यू विल गेट ए स्क्वायर की वैल्यू 27 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 9. ठीक है. ठीक है. तो ए की वैल्यू यहां से क्या आनी चाहिए स्टूडेंट? ए की वैल्यू जो आएगी वो 3√3 आएगी, स्क्वायर रूट लोगे तब, और बी की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी. ठीक है. अब हमें फोकस फाइंड करना है और फोकस फाइंड करने के लिए हमें इसेंट्रिसिटी पता होना चाहिए. तो लेट्स डिस्कस इट्स इसेंट्रिसिटी. तो अगर मैं इसका इसेंट्रिसिटी निकालूं, इसेंट्रिसिटी जो कि हमने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, इसेंट्रिसिटी दैट इज ई. इसेंट्रिसिटी को ई से लिखते हैं. इसकी फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. यही था ना फॉर्मूला. या आप ये भी यूज कर सकते हो, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1. ये भी यूज कर सकते हो. ठीक है. ये इसको सॉल्व करके ही ये आता है. ठीक है. इसको जब सॉल्व करोगे तभी ये फॉर्मूला आएगा. तो डायरेक्टली यही बात, अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप ये अप्लाई कर दो. नाउ हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं. तो ई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर. ए स्क्वायर कितना है स्टूडेंट? 27 एंड बी स्क्वायर कितना है? 3. बी स्क्वायर है 9. तो ई की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट में 9 प्लस 27 बाई 9. सो ई की वैल्यू आई अंडर रूट 36 बाई 9 या 6 बाई 3, या ई की जो वैल्यू आई वो आई 2. ई की वैल्यू यहां पर 2 आई स्टूडेंट. ठीक है. नाउ ई की वैल्यू 2 आ गई तो व्हाट विल बी द फोसाई? अब इस केस में जो देखो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, इसका मतलब इसका जो फोकस होगा वो वाई एक्सिस पे होगा. तो जो उसके फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0, प्लस माइनस बीई. तो प्लस माइनस बीई, तो 0 तो 0 होगा, प्लस माइनस करेगा प्लस माइनस. बी की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो 3 और ई की वैल्यू 2. तो जो फोकस आएगा वो आएगा 0, प्लस माइनस 6. ठीक है. चलो उसके बाद वर्टिसेस. वर्टिसेस इसके कहां पर होते हैं स्टूडेंट? वर्टिसेस, क्योंकि ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला के वर्टिसेस वाई एक्सिस पे होते हैं. और वो होते क्या है? 0, प्लस माइनस बी. अभी लिखा था मैंने. तो 0, प्लस माइनस 3. ठीक है. और एल आर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम
ये हो जाएगा 2a² बाई बी। तो 2a² यानी कि 27a² और b की वैल्यू है 3, तो यानी कि आ जाएगा 54/3। ठीक है, प्लीज नोट डाउन इट। लाइक दिस स्टूडेंट यू हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6, ओके। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो चाहो तो इट विल कम 18। ठीक है, तो ऑल द आंसर्स आर करेक्ट ऑफ आवर क्वेश्चंस। सो आई होप फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 you can easily solve, okay? Now question number 7 to question number 15, all questions are simple student, very simple. We have to generate the what? We have to calculate the equation of hyperbola। ठीक है, हमें हाइपरबोला का इक्वेशन जनरेट करना है। तो उसके लिए some hints are given and with the help of that hints you have to form the equation of hyperbola, okay? So let's solve 1 or 2 questions so that you can solve remaining questions. So now we are discussing student from question number 7, okay? Question number 7 to question number 15 all the same questions. So what you have to do from question number 7 to question number 15, ठीक है? So you can see in each of the exercises from question number 7 to 15 find the equation of the hyperbola satisfy the given condition। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 15 में इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखना है और उसके लिए कुछ हिंट्स दिए हुए हैं। क्या हिंट दिया हुआ है, लेट्स डिस्कस। वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है, वर्टिसेस इज +-2, 0 एंड foci is +-3, 0. So with the help of these two things we have to write the equation of the hyperbola. So by seeing the vertices and foci we can say that the vertex of the hyperbola is lying on the x-axis. It means that it is the normal hyperbola। ठीक है, मतलब कि जो हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन होना चाहिए वो हाइपरबोला हमारा कुछ इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके जो वर्टिसेस हैं उसके जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब सिंपल वाला हाइपरबोला होगा। यानी कि इसका जो इक्वेशन होना चाहिए वो होना क्या चाहिए, x² - y² b² = 1। सो अगर मैं इस वर्टिसेस को किससे कंपेयर कर दूं, सो वी नो दैट in hyperbola x² upon a² minus y² upon b² = 1, the vertices are ±a, 0। तो कंपेयर करके अगर हम लिखें यहाँ पे वर्टिसेस आर ±a, 0 एंड फोसाई आर ±ae, 0। ठीक है, वर्टिसेस होते हैं +-a, 0 एंड फोसाई आर +-ae, 0। सो व्हेन वी विल कंपेयर टू द वर्टिसेस एंड द फोसाई टू द फोसाई we can say the value of a will equal to 2 and the value of ae is equal to 3। ठीक है, फोसाई को फोसाई से कंपेयर करेंगे, वर्टिसेस को वर्टिसेस से, तो a की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 3। तो अगर a की वैल्यू हमारी क्या है 3, तो हम लोग b की वैल्यू निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट। हम जानते हैं ना e की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 × e = 3। ठीक है, तो e की वैल्यू मिली मुझे 3/2। ठीक है, लेकिन e हम जानते हैं कि e होता क्या है, e होता है 1 + b² upon a²। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिखें, इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं, एक काम करते हैं इसको 3/2 रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं a² + b² upon a², स्क्वायर कर देते दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 9/4, ये हो जाएगा a² + b² upon a²। ठीक है, या आप ये वाला भी यूज कर सकते थे, b² = a² e² - 1, तब भी आता। ठीक है, तो 9/4 = a की वैल्यू पता ही है हम लोगों को 2, यानी कि a² हो जाएगा 4 प्लस b² निकालना ही है
और ये हो गया 4। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 9 इज इक्वल टू 4 प्लस बी स्क्वायर आया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 माइनस 4, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। बी स्क्वायर ही जान लेते हैं क्योंकि हमको इक्वेशन निकालना है तो हमें बी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। सो ए पता है, बी स्क्वायर पता है, सो द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, सो द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला is x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. So x square तो x square रहेगा, a की वैल्यू 2 है तो इसका 2 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू निकाले 5 का स्क्वायर, तो यानी कि इसकी इक्वेशन बन गया x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली किया क्या हमने पहले वर्टेक्स लेके ये पहचाना कि कौन सा हाइपरबोला है, उसके वर्टिसेस को ओरिजिनल हाइपरबोला के वर्टिसेस से कंपेयर कर दिया, तो a की वैल्यू 2 आ गई और e की वैल्यू 3/2 आ गई। ठीक है, उसके बाद b की वैल्यू निकाल लिए, और हाइपरबोला का इक्वेशन लिखने के लिए हमें a और b पता होना चाहिए। अगर a और b पता है तो इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा। सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन स्टूडेंट। सो 7, 8, 9 आर द सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन हमने इलिप्स में किया था, सेम ही तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो बिकॉज वी डोंट हैव सो मच टाइम, सो आई एम डिस्कसिंग द लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आई हैव गिवन यू द कॉन्सेप्ट्स, सो विद द हेल्प ऑफ दैट कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, बस आपको कंपेयर करने आना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज यू कैन इजिली सॉल्व। ओके, so I am going to discuss the question number 15, which is the last question of this exercise. So question number 15 is saying that, question number 15 is a good question. Okay, so question number 15 is saying that foci is at foci कहां पर है, 0, प्लस माइनस अंडर रूट 10 एंड हाइपरबोला passing through 2,3। ठीक है, तो हमको इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला लिखना है। तो फोकस को देख के इतना तो पता चल रहा है कि इसके जो फोकस होंगे वो y एक्सिस पे होंगे। अगर फोकस y एक्सिस पे है, इसका मतलब हाइपरबोला की जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो y एक्सिस पे है। इसका मतलब कि वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। इसका मतलब जो हाइपरबोला होगा दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, वो इस तरह का होगा, क्योंकि इसका जो फोसाई है, फोसाई यही होना चाहिए y एक्सिस पे, और y एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब फोसाई इसके कितने हैं, प्लस माइनस रूट 10। यानी कि स्टूडेंट अगर मैं इसको फोसाई को इससे कंपेयर कर दूं, फोसाई हम जानते हैं क्या होता है, 0, प्लस माइनस बीई, तो मैं कंपेयर कर दूं तो जो बी की वैल्यू मिलेगी मुझे, बीई की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 10। जो बी की वैल्यू मिलेगी मुझे क्या मिलेगी, अंडर रूट 10। नाउ हाइपरबोला विल बी लाइक दिस, सो this will be a conjugate hyperbola. This will be a conjugate hyperbola. ठीक है, ये conjugate hyperbola होगा क्योंकि उसी का फोकस y एक्सिस पे होता है। So conjugate hyperbola. ओके, क्योंकि फोकस y एक्सिस पे है और y एक्सिस पे ही conjugate hyperbola का फोकस आता है। ठीक है, अब जो conjugate hyperbola उसका इक्वेशन क्या होता है, we know that equation of conjugate hyperbola is क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है। ठीक है, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है यू कैन डिस्कस, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं, ये होता है। ठीक है, अब जो हाइपरबोला है वो कहां से पास कर रही है, 2,3, सो वी विल राइट बिकॉज हाइपरबोला passes through 2,3, so it means 2,3 will satisfy this equation, so we can put the value of 2,3 here, so we can say minus 2 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो वी कैन से -4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए कि हमें b की वैल्यू √10 मिली थी. वी नो दैट कि b कितना था √10. स्क्वायर कर देते हैं इसका तो क्या मिलेगा, b स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अगर स्क्वायर कर दे तो. ठीक है, और इस केस में जो e स्क्वायर होता है स्टूडेंट, जो e स्क्वायर होता है वो होता है 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. क्यों? क्योंकि हमको पता है कि e की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. कॉन्जुगेट हाइपरबोला में यही होता है e की वैल्यू. तो अगर मैं e की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो ये अंडर रूट का साइन हट जाएगा और ये आ जाएगा. ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10. तो बी स्क्वायर कट गया तो यहां से मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10. ठीक है, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है. अच्छा अब देखो इक्वेशन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया था ना, यहां पे इक्वेशन नंबर 1 यहां था. अब एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, यहां से हम लोग बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, यहां से अगर मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या ले सकता हूं, बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर ले सकते हैं ना. बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां से निकाल लिया 10 माइनस ए. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें ए और बी पता होना चाहिए इक्वेशन लिखने के लिए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से -4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 upon b square equal to 1. Now put the value of b square. So -4 upon a square plus 9 upon b square की वैल्यू 10 minus a square equal to 1. ठीक है, आपको देख के पता चल जाएगा क्वेश्चन में हिंट क्या दिया हुआ है. ठीक है, जो मैं जल्दी कर रहा हूं ये आप भी कर सकते हो ना. इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट. इसको मैं ऐसे ले सकता हूं अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए कि 10 अपॉन 9 अपॉन 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नाउ एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आएगा ए स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 1. यही होगा. ठीक है, तो ये हो गया 13a स्क्वायर माइनस 40 अपॉन ए स्क्वायर माइनस, इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं. ठीक है, इसको मैं नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो 10a स्क्वायर माइनस a टू पावर 4 इज इक्वल टू 1. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 13a स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 10a स्क्वायर माइनस a टू पावर 4. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आएगा a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो प्लस 3a स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 40 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो इसको मैं फैक्टराइज करूंगा अगर तो ये आ जाएगा a टू पावर 4 प्लस 8a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 0. सो यहां से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 8 और यहां से माइनस 5 कॉमन आ जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0. सो यहां से कह सकते हैं हम कि a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0. ठीक है, ये आएगा. तो 1 बाय 1 करेंगे कि जब a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा तो हमें a स्क्वायर की वैल्यू -8 मिलेगी विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि a और b डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंसेस नेगेटिव नहीं होती है. तो अगर डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -8 आ रहा है तो ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे. तो यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, a स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0. सो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई. तो अगर a स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड था. सेकंड इक्वेशन से b स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट में डाल दिया. ठीक है, तो हमें a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई. एक इक्वेशन से वैल्यू निकाला, दूसरे में पुट कर दी तो हमें b स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट मिल गई. ठीक है, देखो a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0 था तो a स्क्वायर की वैल्यू -8 मिली थी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो वैल्यू नहीं ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी डिस्टेंस का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता है. तो a स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आने नहीं चाहिए, तो ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं. तो a स्क्वायर की वैल्यू 5 होगी. तो अगर मैं यहां से ये कहूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस a स्क्वायर हमने लिखा है. ठीक है,
ए स्क्वायर की वैल्यू पता ही है 10 माइनस 5, तो बी स्क्वायर भी कितना आ गया 5, ठीक है। तो यानी कि हमें ए स्क्वायर ही पता चल गया और बी स्क्वायर ही पता चल गया। तो जब ए स्क्वायर ही पता चल गया और बी स्क्वायर भी, तो हम इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला लिख सकते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो जो हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट, 5 एलसीएम ले लोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। सो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। सो लेट्स चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, यही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया स्टूडेंट, जो भी कंडीशन थी उससे एनालाइज किया कि कौन सा हाइपरबोला हो सकता है। अगर फोकस दिया हो और फोकस के जो कोऑर्डिनेट हो वो एक्स एक्सिस पे, उसका मतलब वो सिंपल हाइपरबोला है। अगर फोकस दिया हो और उसकी कोऑर्डिनेट, उसकी फोकस जो है वो वाई एक्सिस अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। और उसके हिसाब से आपको कंपेयर करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया स्टूडेंट। एक तरह का और हाइपरबोला होता है, उसको बोलते हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला, ठीक है। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल हाइपरबोला। और वो हाइपरबोला वो होता है स्टूडेंट जिसमें ए और बी की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू सेम होती है, मैं लिख देता हूं वो भी, आप ये नोट डाउन कर लो पॉज करके, ठीक है। आंसर ये है स्टूडेंट, दिस इज द आंसर। आप यहां पे भी छोड़ सकते थे लेकिन मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, तो दिस इज, ठीक है। सो एक छोटा सा टॉपिक मैं बता देता हूं जल्दी से, जिससे ये चैप्टर फिनिश हो जाए। सो वन मोर हाइपरबोला इज नोन एज इक्विलैटरल हाइपरबोला, ठीक है। इक्विलैटरल हाइपरबोला, इक्विलैटरल हाइपरबोला, इक्विलैटरल हाइपरबोला, ये छोटा सा टॉपिक है, ये बस लिख लो आप। तो इसकी डेफिनेशन ये है स्टूडेंट, अ हाइपरबोला in which A is equal to B is known as equilateral hyperbola, ठीक है। ऐसा हाइपरबोला जिसमें A इक्वल टू क्या हो, B, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल हाइपरबोला, ठीक है। आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये, यू कैन सी इट दैट, जैसे आपको आप यू नो ना, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो अगर इक्विलैटरल हाइपरबोला होगा तो ए और बी इक्वल होंगे, तो हम क्या कह सकते हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी की जगह भी ए पुट कर देते हैं, तो ये भी ए स्क्वायर हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इक्विलैटरल हाइपरबोला, ठीक है। हम जानते हैं ना कि हाइपरबोला का इक्वेशन ये होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर ए की जगह बी पुट कर दे या बी की जगह ए पुट कर दे, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, विच रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ इक्विलैटरल हाइपरबोला, ओके। सो स्टूडेंट, बाय दिस वी हैव फिनिश्ड ऑल द कोनिक सेक्शन,
such as circle, hyperbola, parabola, and ellipse. Okay, so from my side, I have solved as many questions as I can. So from my side, this chapter is over. So now it's your responsibility to solve the each and every question of this book also and the other book also. Okay, if you will go through all the concepts of the conic sections, then you are able to solve all types of questions. Okay, so by this we have ended this chapter, that is conic section. I hope you are studying and you are watching the videos. So please watch, please understand, please watch each and every part of the video so that you can solve the questions. Okay, so this chapter is completed. So in the next class we will start a new chapter. So till then, students, have a nice day, take care, thank you.